today let us study chapter 3 history, Nazism and the rise of Hitler. So Nazism and the rise of Hitler. In this chapter we have to study birth of the Weimar Republic, Hitler's rise to powers, the Nazi worldview, youth in Nazi Germany, ordinary peoples and the crimes against humanity. So we have to take that is first topic, birth of Weimar Republic. So Weimar Republic is the general name called by the people now these days. But what was the Weimar Republic and why Weimar Republic birth in Germany just after the World War First? So after initial gain, Germany and the Central Powers were defeated in World War First. Allies got strengthened with US early in the war in 1917 when US entered in the First World War in 1917. So Central Powers became weaker against the Allied forces. Abdication of German Emperor and setting up a national assembly in Weimar. So the German Emperor was called Kaiser or Kaiser. Elections based on universal franchise. Formation of republic in Germany could not influence Germans. Blamed for German humiliation by accepting German defeat and signing of Treaty of Versailles. So later we have to discuss what was the Treaty of Versailles. At first we have to discuss about the Weimar Republic. So what was Weimar Republic? So the Constituent Assembly just after the First World War, when Germany defeated, assembled in the city of Weimar, that is located in the central place of the Germany. That's why, and that Constituent Assembly created a constitution to run democratic government in Germany. That's why, and that German states was called Republic. So generally we called Weimar Republic because of the place Weimar. So this political system was simply the German Republic from 1918 to 1933. This constitutions run the Germany as a German Republic. So that real name of that political system just after the World War First in Germany, that was German Republic, but generally we called Weimar Republic. And that constitution run the country of Germany from 1918 to 1933. As a term, it is an unofficial historical designation that derives where the Constituent Assembly first took place. So the Constituent Assembly for making constitution for the German Republic first met in the place of Weimar or in the city of Weimar. That's why we call Weimar Republic. Key problems of the Weimar Republic. When constitutions created and implemented in Germany as a republic constitutions, what were the problems? These problems may not be given in your book details, so I want to explain here. The Weimar Republic created at the time of confusion and chaos after Germany had lost the World War First. जब कैसर जो वहाँ का राजा था, किंग था, रॉयल फैमिली थी, वो जर्मनी को छोड़ करके एक्चुअल में भाग चुका था. It means that was the gap in the place of government. So when Constituent Assembly assembled in the Weimar for creating a new constitution, there was actually no government. क्योंकि राजा भाग चुका था, उसके जगह पे कोई भी टीम या कोई भी गवर्नमेंट क्लियरली बन नहीं पाई थी. Many people felt that Germany had survived a very harsh deal in the Treaty of Versailles and they resented the government for signing it and agreeing to its condition. और जो भी गवर्नमेंट वीमर रिपब्लिक के थ्रू आई, उसके ऊपर ये ब्लेम लगाया गया कि इन्होंने ही सब कुछ गड़बड़ किया है और वर्साइली की जो ट्रीटी हुई है, संधि हुई है एलाइड फोर्सेस के साथ, उसमें
ये दोषी है क्योंकि इन्होंने सरेंडर कर दिया, जर्मनी को बहुत नुकसान पहुंचा है। द वीमर रिपब्लिक फेस्ड वायलेंट अपराइजिंग, अपराइजिंग मीन्स विद्रोह, विरोध, फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स, नॉट टू मेंशन डिवास्टेटिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। केवल डिवास्टेटिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं हुई, जर्मनी वॉज टोटली इन इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो आर्थिक संकट जर्मनी में था, उसके अलावा तमाम ऐसे ग्रुप थे जो जर्मनी में विद्रोह किया, उन्होंने रिबल्ट किया, लूटपाट किया, एक ग्रुप ने दूसरे को मारा। जर्मनी बिटवीन 1918 एंड 1919 वाज इन चाओस। चाओस मीन्स रेबल, प्रोटेस्ट, विद्रोह, जहां पे लूट मार विरोध करने के लिए किसी भी हद तक जाए। पीपुल वेयर स्टार्विंग, द कैसर हैड फ्लेड एंड पीपुल हेटेड the government for signing the armistice in November in 1918. They called them the November criminals. So who were called November criminals in the chapter? That question would be the people, the leader, the group of members who signed the Treaty of Versailles. The German people called them November criminals because that sign was done in the month of November. So bands of soldiers called free corps, बैंड ऑफ सोल्जर, सेना के जो दल होते हैं, सशस्त्र सेनाओं का जो संगठन होता है, उनको हम बोलते हैं आर्मी बैंड्स और बैंड्स ऑफ सोल्जर। इनको जर्मनी में फ्री कार्स बोला जाता था। रिफ्यूज टू डिसबैंड, तो दैट वाज ये आर्टिकल इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइली कि टोटल जर्मन आर्मी विल बी डिसआर्म्ड और डिसबैंड। बोला गया था कि जर्मनी की जो सेनाएं हैं इनको खत्म कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, सेना नहीं रहेगी। तो जो इनके सोल्जर्स थे, जो सेना के दल थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि सेना खत्म नहीं होगी, सेना रहेगी। एंड फॉर्म प्राइवेट आर्मीज, तो गवर्नमेंट ने तो साइन कर दिया कि भाई आर्मी नहीं रहेगी। तो जो जर्मनी की सेना थी, जो सैनिक थे, उन्होंने अपना प्राइवेट सेना बना ली। नेशनलिस्ट टेररिस्ट असैसिनेटेड 356 गवर्नमेंट पॉलिटिशियन। नेशनलिस्ट टेररिस्ट, जो राष्ट्रवादी आतंकवादी जिनको आज हम बोलते हैं, नेशनलिस्ट है तो टेररिस्ट लगाना ठीक नहीं था, जो राष्ट्र से प्रेम कर रहे थे, जो जर्मनी का भला चाहते थे, उन्होंने असैसिनेट कर दिया 356 गवर्नमेंट पॉलिटिशियन का, इंक्लूडिंग वाटर रेथेन्यू द फॉरेन मिनिस्टर की भी हत्या की, एंड मैथियस आर्चबर्ग्स हु हैड बीन फाइनेंस मिनिस्टर। तो अपने फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री और वित्त मंत्री की इन्होंने हत्या कर दी। द जजेस मेनी ऑफ होम प्रिपेयर द कैसर्स गवर्नमेंट। सो अब इसमें क्या है कि जो जज थे, जिन्होंने कैसर जो राजा था उसकी गवर्नमेंट को प्रिफर्ड किया था, महत्व दिया था, गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली गेव दिस टेररिस्ट लाइफ सेंटेंस। जजों ने जो कैसर की गवर्नमेंट को प्रिफर किया, इट मीन्स वीमर रिपब्लिक में डेमोक्रेसी आ गई, राजा का कोई स्थान नहीं था। तो जज कुछ ऐसे थे जिनके कोर्ट में नेशनलिस्ट टेररिस्ट का मुकदमा गया, केस गया, तो उन्होंने इनको बड़ी लाइट सजा दी, बहुत हल्का फुल्का सजा दिया। सेंटेंसेस आर लेट देम गो फ्री, या तो उन्हें फ्री छोड़ दिया कि जाओ, कोई सजा नहीं। इन जनवरी 1919 50,000 Spartacists that were the follow of the Sparta. In ancient times, there were two countries in the Europe that were Greece and Sparta. So Sparta was separate, and in the Greece there were many small kingdoms. One was Athens, and that were the competition between Athens and Sparta. And now these days we have to celebrate Olympics game on world level. That was originated from the competition between Athens and Sparta. In Athens there were many ideologies, Plato, Socrates, Aristotle also. These were
intellectual person. So Athens preferred intellectuality or knowledge, and Sparta preferred the physical strength. So that's why Spartacists rebelled in Berlin, led by the communist Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg was the communist leader, and Karl Liebknecht. So both were leading rebellion, communist rebellion especially in the Germany. In 1919, communist workers council seized power all over Germany. अब कम्युनिस्ट वर्कर की जो काउंसिल थी उन्होंने पूरे जर्मनी को सीज कर दिया, यानी कि जहां भी पावर था, सेना थी, पुलिस थी, सबको सीज कर दिया, बंद कर दिया. एंड ए कम्युनिस्ट पीपुल्स गवर्नमेंट टुक पावर इन बावरिया. बावरिया इज आल्सो सम लोकल एरिया इन जर्मनी. तो जर्मनी के एक छोटे से हिस्से पर इन्होंने कम्युनिस्ट पीपुल गवर्नमेंट बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बना लिया. March 1920, the right-wing nationalist Dr. Wolfgang Kapp took over Berlin. Dr. Wolfgang Kapp, K-A-P-P, Kapp means the main follower, Purus, main follower of Wolfgang, took over Berlin. इन्होंने बर्लिन पे कब्जा कर लिया. The army refused to attack him. और जो आर्मी थी, जो भी छोटी मोटी आर्मी बर्लिन में बची थी या जर्मनी में, उसने जो है अटैक नहीं किया इस गैंग के ऊपर. ही वॉज ओनली डिफीटेड व्हेन द वर्कर्स ऑफ बर्लिन वेंट ऑन स्ट्राइक. बर्लिन के अंदर के जो वर्कर थे, कामगार थे, जब वो हड़ताल पे चले गए तभी वोल्फगैंग काप को कंट्रोल किया गया या डिफीट किया गया. इन 1920 एज ए रिस्पॉन्स to the Kapp pushes, push, P-U-T-S-C-H, pushes means rebel, withdraw. A paramilitary group called the Ruhr Red Army. So I told in prior, all the soldiers wanted to not disband, and they created their own private army also. So that was Ruhr Red Army. The army, private army living in the Ruhr area, that was Ruhr Red Army, led a rebellion in the Ruhr district. Why rebellion in Ruhr district? Because the region of Ruhr was taken from the Germany and divided among France, Poland, Denmark and Lithuania. After that, the aim of Kapp pushes was to set up a new government. जो विद्रोह होता था कुछ ग्रुप का, फॉलोअर्स का, जगह जगह जर्मनी में जो विद्रोह होता था, उसका जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि हम नई सरकार बनाएंगे, वीमर रिपब्लिक को खत्म करके एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे. कम्युनिस्ट वांटेड टू ब्रिंग इन ए रशियन स्टाइल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. इन रशिया ऑन दैट टाइम that was led by the Stalin Communist Party government in Russia. The main crisis of the Weimar government occurred in 1923. ये तो रेबिलियन इन द जस्ट लाइक द सिविल वॉर इन द जर्मन नेशन. अब इसके बाद 1923 आते आते बहुत गंभीर संकट हो गया. When the Germans failed to make a reparation payment on time, which set off a train of events that includes reparation, क्षतिपूर्ति, मुआवजा. To whom? To Allied forces. In the Treaty of Versailles, there was settlement to reparation to the Allied forces nation. जर्मनी युद्ध में हार तो गया था, लेकिन ब्लेम लगाया गया कि जर्मनी की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, और जो भी लड़ाइयाँ जिन देशों में लड़ी गई हैं, जर्मनी ने लड़ा है, उन देशों का काफ़ी मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ है. तो जर्मनी उनको जो है क्षतिपूर्ति देगा, उनकी भरपाई करेगा. पेमेंट ऑन टाइम, और ये टाइम से 23 में पेमेंट जर्मनी नहीं कर पाता है. सेट ऑफ ए ट्रेन ऑफ इवेंट्स. अब यहां से घटनाओं का क्रम, सेट ऑफ ए ट्रेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की ट्रेन नहीं,
घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से अब चल रहा है। दैट इंक्लूड ए फ्रेंच इन्वेजन ऑफ द रूर, फ्रांस को पैसा नहीं मिला तो रूर जो उसके अंडर में खुद था और उसमें इन्वेजन करा और आगे बढ़ गया, कब्जा किया। ए जनरल स्ट्राइक इन जर्मनी, जर्मनी में हड़ताल होने लगी बिकॉज ऑल द लेबरर्स डिड नॉट गेट देयर वेजेस, उनको पैसा मिलता नहीं था, काम कराया जाता था। रन अवे इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, रन अवे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन इज टोटली रिलेटेड टू द हाई प्राइसेस, जब कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं किसी भी देश में चीजों की तो उनको हम बोलते हैं हाई इन्फ्लेशन। ए नंबर ऑफ कम्युनिस्ट रेबेलियंस, कम्युनिस्ट पार्टी बिकॉज यूएसएसआर वाज द नाइबरिंग कंट्री ऑफ जर्मनी। अब वहां से क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो जर्मनी के अंदर थी ये विद्रोह करती थी। एंड अटेम्प्टेड नाजी पुश इन म्यूनिक, म्यूनिक इज ए सिटी इन जर्मनी, म्यूनिक में स्पेशली जो नाजी पार्टी थी इन्होंने विद्रोह किया। सो दिस वेयर टोटली बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइली। सो क्वेश्चन इज नेचुरल अराइज हियर कि व्हाट वाज द वर्साइली ट्रीटी, वर्साइली की संधि क्या थी, ट्रीटी को बोलते हैं संधि। सो वर्साइली ट्रीटी विद द एलाइज वाज ए हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस। तो इसमें यह था कि वर्साइली ट्रीटी तो पीस इस्टेब्लिश करने के लिए बनी थी, लेकिन ऑल द आर्टिकल्स एंड द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी वेयर आल्सो कॉजेस ऑफ द हैरेसमेंट एंड ह्यूमिलिएटिंग जर्मनी। तो जर्मनी को काफी बाध्य किया गया, काफी कठिनाई में डाला इस ट्रीटी ने, और जर्मनी के अंदर जो शांति थी, पीस थी, उसको ह्यूमिलिएट कर दिया। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवर सीज कॉलोनीज, ऑल द कंट्रीज हु वेयर द कॉलोनी ऑफ जर्मनी, स्पेशली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में थे। तो जो भी कंट्री जस्ट लाइक इंडिया, इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, बट देयर वर मेनी कंट्री दैट वेयर द कॉलोनी ऑफ जर्मनी। तो जितने ओवरसीज, समुद्र के पार, यानी जर्मनी से दूर जो जर्मनी के अंडर में कंट्रीज थे, वो जो है जर्मनी से ले लिए गए, छीन लिए गए। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और जर्मनी से उसकी जनसंख्या का 1/10 छीन लिया गया। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, जर्मनी का 13%, सो दिस इज 13% टेरिटरी जर्मनी से छीन लिया गया। 75% ऑफ इट्स आयरन, 75% आयरन, 75% जो आयरन ओर्स थे, आयरन माइंस थी जर्मनी का, टोटल जो प्रोडक्शन आयरन ओर का जर्मनी में होता था उसका 75% एलाइड फोर्सेस ने ले लिया, छीन लिया। एंड 26% ऑफ इट्स कोल, सो आयरन एंड कोल, कोल जो है 26%, टोटल 100% का 26% कोल जो जर्मनी प्रोड्यूस करता था वो ले लिया गया। तो कैसे लिया गया? ये जिन एरिया में ये कोल्ड माइन और आयरन माइन थी, इन एरिया का 75 और 26% जो है एलाइड फोर्सेस की कंट्रीज ने अपने अंडर में ले लिया, जर्मनी से छीन लिया गया। इट्स कोल्ड टू किसको दिया गया? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। द एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, जर्मनी की शक्ति को घटाने के लिए, कमजोर करने के लिए एलाइड फोर्सेज ने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, यानी सैन्य रहित किया, सेना को भंग करवाया। इसीलिए तो जो सैनिक थे उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली। द वार गिल्ड क्लास हेल्ड जर्मनी, वार गिल्ड क्लास मीन्स ऐसे क्लास, ऐसे नियम, ऐसे रूल्स जो वार गिल्टी के ऊपर लगते हैं, युद्ध अपराधी के ऊपर लगते हैं, हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार। तो वार गिल्ट क्लाज में युद्ध के अपराध के नियम में या जो ट्रीटी बनी थी उसमें जर्मनी को टोटली उत्तरदायी बताया गया, रिस्पॉन्सिबल युद्ध के लिए। एंड डैमेजेस द एलाइड कंट्रीज सफर्ड, और एलाइड कंट्रीज जस्ट लाइक यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ऐसे कंट्री के ऊपर लगाया गया कि
इसने युद्ध करके इन देशों का बहुत नुकसान किया है और ये देश सफर कर रहे हैं। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग ऑफ 6 बिलियन पाउंड। 6 बिलियन पाउंड जर्मनी को बोला गया कि कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के लिए 6 बिलियन पाउंड आप दीजिए, जबरदस्ती, फोर्स। द एलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड। अब जो एलाइड की आर्मी थी, यानी फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, यूएसए, इन देशों की जो एलाइड फोर्सेस थी वो जर्मनी में जा करके और कब्जा कर रही है। तो रिच राइनलैंड्स, राइनलैंड्स स्पेशली यही रूर था, इसके बाद राइनलैंड, 2 क्षेत्र पे कब्जा। रूर तो दे दिया गया वर्साइले की ट्रीटी में, राइनलैंड पे डायरेक्ट इन फोर्सेस ने कब्जा किया। फॉर मच ऑफ द 1920s many Germans held to the new Weimar Republic responsible for not only the defeat। अब जो जर्मनी के ज्यादातर लोग ये सोचते थे कि वीमर रिपब्लिक जो संविधान बना यही हमारे डिफीट का कारण बना इन द वार, बट द आल्सो डिसएग्री एट वर्साइली। और वर्साइली की ट्रीटी से भी डिसएग्री करते थे कि बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, जर्मनी के साथ अन्याय हो रहा है। सो ट्रीटी ऑफ वर्साइली 1919 डिसाइन्ड बाय एलाइड पावर्स। ये टोटली जो वर्साइली ट्रीटी थी ये इसको डिजाइन किया था, बनाया था एलाइड पावर्स ने। टू क्रिपल्ड जर्मनी मिलिट्री, इकोनॉमिकली एंड टेरिटोरियली। क्रिपल्ड जर्मनी, जर्मनी को क्रिपल करने के लिए, पंगु बनाने के लिए, अपंग बनाने के लिए, असहाय बनाने के लिए, मिलिट्री सैनिक रूप से भी, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से भी और क्षेत्रीय रूप से, यानी कि जितने माइंस क्षेत्र हैं जहां पे कोल, आयरन और मिलता है उसको भी ले लो, मिलिट्री को डीमिलिटराइज कर दो, सेना को खत्म कर दो, और इकोनॉमिकली इतना इस पे क्षतिपूर्ति लगाओ, इतना पैसा इससे ले लो कि इकोनॉमी भी इसकी डिस्ट्रॉय हो जाए। सो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ वर्साइली ऑफ ट्रीटी अपॉन जर्मनी? दिस इज इन शॉर्ट। Germany lost her overseas colonies, as I told, Chinese ports, Pacific islands and African colonies taken back, वापस ले लिया गया। Germany's military powers reduced, घटा दिया गया। आर्मी reduced to 1 लाख, बोला गया वर्साइले ट्रीटी में कि 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी होगी। नो एयर फोर्स एंड मॉडर्न वेपन्स, कोई भी आधुनिक हथियार नहीं होंगे, एयरफोर्स नहीं होगी। कुड नॉट बिल्ड लार्ज बैटलशिप, जंगी जहाज जो सीज पे चलते हैं, लड़ाकू जहाज पानी में, वो नहीं बनाएगा। राइनलैंड डीमिलिटराइज, राइनलैंड का जो एरिया था जिसपे एलाइड फोर्सेज यानी जर्मनी के अपोजिट फोर्सेज ने ऑक्युपाइड कर लिया था, उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया। रिसोर्सेज रिच राइनलैंड टेकन बाय एलाइड आर्मीज, तो एलाइड की जो फोर्सेस थी, आर्मी थी, सेनाएं थी, उन्होंने राइन लैंड्स को पूरा अपने कब्जे में ले लिया। जर्मनी लास्ट हर नेशनल टेरिटरीज, कौन से हैं? बेल्जियम, डेनमार्क, लिथुआनिया एंड पोलैंड टुक 13% ऑफ जर्मन टेरिटरी, और बाकी जो बचा उसने फ्रांस ले लिया उसे। वॉर गिल्ड, जर्मनी मेड टू एक्सेप्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्लेम, जर्मनी को बाध्य किया गया, उसने स्वीकार किया कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ उसकी टोटल जिम्मेदारी जर्मनी लेता है। रिप्रेशन, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, जर्मनी फोर्स टू पे वॉर डैमेज एंड फाइन ऑफ अबाउट 6 बिलियन पाउंड। सो दिस वर्साइली ट्रीटी वाज अनजस्ट ट्रीटी, अन्यायपूर्ण थी, ओनली फॉर द ह्यूमिलिएटिंग एंड फोर्स टू वीकेंड जर्मनी, जर्मनी को कमजोर बनाने के लिए और उसे आर्थिक रूप से भी कमजोर बनाने के लिए ये ट्रीटी हुई थी। सो व्हाट वेयर द इफेक्ट्स ऑफ वार? इट मीन्स वर्ल्ड वार फर्स्ट, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड बोथ फिजिकल एंड फाइनेंशियल। फर्स्ट वर्ल्ड वार से जो नुकसान हुआ वो फिजिकल भी हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिजिकल थिंग्स, एंड फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से भी। फ्रॉम
क्रेडिटर्स यूरोप टर्न डेप्टर्स, जो यूरोप क्रेडिटर्स था, क्रेडिट मीन्स देने वाला, वो अब क्या हुआ, लेने वाला, यानी अब कर्ज ले रहा है, पहले यूरोप कर्ज देता था। बिकॉज ऑल द कंट्रीज वेर यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, लिथुआनिया, डेनमार्क, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। एक कंट्री बस 1917 में आया जो यूएस था, जो अमेरिका कॉन्टिनेंट का था। जर्मनी फेस्ड वार गिल्ट, नेशनल ह्यूमिलिएशन and found itself crippled financially. Soldiers rose above civilians. Stress on men being aggressive, strong and masculine. अब ये तनाव आ रहा है मेन के ऊपर, नॉट वोमेन, जो बीइंग एग्रेसिव, कि आक्रामक बनो, जर्मनी को तो एकदम बर्बाद कर दिया। स्ट्रांग, मजबूत बनो, एंड मैस्कुलिन, मैस्कुलिन का मतलब फिजिकली स्ट्रांग, एकदम हट्टा कट्टा साहसी। मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, अब मीडिया का रोल आता है ट्रेंच लाइफ, जो सोल्जर्स बॉर्डर पे, फ्रंट पे वार कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, वो खाइयों में छिपते हैं, खाई बनती है, उसमें छिप करके वो अटैक करते हैं, तो उसको ग्लोरीफाई वहां की मीडिया कर रही थी। वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर कॉट पब्लिक अटेंशन, वार प्रोपेगेंडा, अब वार का प्रोपेगेंडा हुआ, अफवाह उड़ी कि नहीं जर्मनी वालों ने भी बड़ा मारा था, इसको मारा था, वो किया था, ये किया था। और नेशनल ऑनर, राष्ट्र के सम्मान की बातें लोगों को आकर्षित करने लगी। सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक आइडियाज सीज्ड, तो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप को सपोर्ट मिलने लगा। दैट वाज द कॉज ऑफ द राइज टू हिटलर, कि वहां ये माना जाने लगा कि कोई डिक्टेटर आए और जो कंजर्वेटिव माइंड हो, रूढ़िवादी हो, जो उदार न हो, एकदम कट्टर हो, और जर्मनी को फिर आगे स्ट्रांग नेशन के रूप में इस्टेब्लिश करे। सो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, अब राजनीतिक जो रूढ़िवादिता थी और उसके साथ जो आर्थिक संकट आया। कंट्री चेंज विथ डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, कम्युनिस्ट मांग रहे थे। सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स स्ट्रेस्ड फॉर ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट समाजवादी, डेमोक्रेट्स लोकतंत्रवादी, और कैथोलिक्स जो क्रिश्चियन थे, ये काफी दबाव बना रहे थे कि नहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही रहेगा जर्मनी। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बाय सेपरेटिस्ट, तो सॉरी स्पार्टासिस्ट, जो स्पार्टासिस्ट थे वो जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। रेडिकल सॉल्यूशंस वेयर sought to achieve political gains. Germany fought war on loans and was made to pay in gold. तो जर्मनी fought war on loans, जर्मनी जब युद्ध लड़ा था तो इसने लोन लिया था, पैसा दूसरों से लोन लिया, पैसा खूब लिया, अपनी शक्ति को बढ़ाया, और इसको पेमेंट जो करना था लोन का वो गोल्ड के रूप में करना था। रेकलेस प्रिंटिंग ऑफ पेपर करेंसी डिक्लाइंड द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क्स। रेकलेस प्रिंटिंग, पेपर करेंसी जो हमारे यहाँ रूपी नोट है, इस पेपर करेंसी को जर्मनी में खूब धड़ल्ले से छापा गया, कोई कंट्रोल नहीं, जितना छाप सको छापो। इसने क्या किया कि जर्मन मार्क, द करेंसी ऑफ जर्मन इज कॉल्ड मार्क, तो मार्क जैसे जस्ट लाइक आवर रूपी, हम अपने यहाँ रूपी बोलते हैं, वो मार्क बोलते हैं, इतना छापा कि जर्मन मार्क का जो वैल्यू था वो काफी गिर गया। हाइपर इन्फ्लेशन फर्दर क्रिएटेड चाओस इन जर्मनी, एज आई टोल्ड। यूएसए इंट्रोड्यूस द डावोस प्लान, तो अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने जर्मनी को उबारने के लिए, कुछ मदद करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस और डिप्रेशन से निकालने के लिए एक प्लान सेट करता है। दे वाज प्लान टू बेल आउट जर्मनी फ्रॉम क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस से जर्मनी को बाहर निकालने के लिए। बेल आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, कुछ दे करके जमानत वगैरह उसको बाहर कर लेना। तो अमेरिका ने अंडर द डावोस प्लान्स कुछ जर्मनी की इकोनॉमिक हेल्प किया, जिससे कि जर्मनी जो है बाहर आ जाए संकट से। सो द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, सो नाउ वी हैव टू कम ऑन आवर NCERT books.
the years of depression, what were the main circumstances and conditions of depression in some years. So between 1924 and 1928, 1924 से लेकर के 1928 तक saw some stability, कुछ अस्थायित्व जर्मनी में दिख रहा है. Why? Because of Davos Plan of America, USA. Yet this was built on sand, जबकि यह सैंड बालू पे बना हुआ था. जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वेयर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स. जर्मनी में जो इन्वेस्टमेंट था, जो वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, वो टोटली शॉर्ट टर्म लोन्स पे था. बहुत कम समय के लिए लोन लिया गया था, लार्जली फ्रॉम द यूएसए. दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज लाइंग इन द यूएसए, जस्ट लाइक आवर हमारे बॉम्बे में तमाम जो है एक्सचेंज ऑफिस है, ठीक है, जिनको हम वी कॉल्ड इन हिंदी जस्ट लाइक शेयर मार्केट. सो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का जो शेयर मार्केट था वो काफी सडनली फॉल डाउन हो गया इन यूएसए में. तो जो सपोर्ट था यूएस का जर्मनी को, वो विथड्रॉल हो गया. यूएस ने सपोर्ट करना बंद कर दिया क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब होने लगी. सो फियरिंग ए फॉल इन प्राइसेस, पीपुल मेड फ्रंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स. फियरिंग ए फेल इन प्राइस, शेयर मार्केट जो होती है वो शेयर के प्राइस पे ग्रो करती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, हाई होता है या लो होता है शेयर मार्केट. अब लोगों में डर बन गया कि शेयर के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो उन्होंने अपना शेयर बहुत तेजी से बेचना शुरू कर दिया. सो ऑन वन सिंगल डे ऑन 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वेयर सोल्ड. एक ही दिन में. दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. और यहीं से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हो गई, क्योंकि इतना तेजी से वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यूएस का धराशायी होने लगा, तो यूएस ने सपोर्ट करना बंद कर दिया. जब सपोर्ट करना बंद कर दिया तो जर्मनी तो वैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन में था. अब जर्मनी की हालत और खराब हो जाती है. ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ. यूएसए की नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय थी वो बिटवीन 1929 एंड 1932 हाफ हो गई, आधी हो गई. फैक्ट्रीज शट डाउन, फैक्ट्रियां बंद हो गई. एक्सपोर्ट्स फेल्स, जो एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, वो गिर गया. फार्मर्स वेयर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स, स्पेकुलेटर मीन्स सट्टेबाज, जो शेयर में सट्टा लगाते हैं मार्केट में, withdrew their money from the market. The effects of this recessions in the US economy were felt worldwide. तो जो रिसेशन आया था, जो मंदी आई थी वर्ल्ड इकोनॉमी में या यूएस के इकोनॉमी में, आर्थिक मंदी जिसको बोलते हैं, ये पूरी की पूरी विश्व में महसूस की गई. And now these days also, if US economy fall down, its impact and effect and hit all over the world. आज भी अमेरिका में आर्थिक संकट थोड़ा भी आ जाता है तो पूरे विश्व पे इसका असर दिखता ही दिखता है. सो अब इसका असर क्या होगा? लॉस ऑफ जॉब्स आर रिड्यूस्ड वेजेस, नौकरियां चली गई लोगों की, बेरोजगार हो गए. दूसरा, जो वेजेस थी, मजदूरी थी या सैलरी थी, उसको घटा दिया गया. अनएम्प्लॉयमेंट रीचेज अनप्रेसिडेंट लेवल्स, सोच से बहुत ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. जितना एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना ही अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इतना इकोनॉमिक डिप्रेशन है तो इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उससे कहीं ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए. करेंसी लास्ट वैल्यू, जो करेंसी जर्मन मार्क की जो करेंसी का वैल्यू था, एक उसका वैल्यू मीन्स यहाँ पर होगा उसका मूल्य जो था. जैसे 100 रुपीज नोट हम रखते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 रुपीज नोट से हम क्या क्या ले सकते हैं मार्केट में, और एकदम करेंसी इतना ज्यादा छप जाए कि कोई भी 10 रुपए की चीज भी 100 रुपए में हम न ले पाए. चीजों के दाम बहुत हाई हो गए और इसके बाद करेंसी बहुत मार्केट में आ गई.
अब नतीजा ये हुआ कि हमारे पास करेंसी तो बहुत है, लेकिन हम मार्केट में जा रहे हैं तो उतनी करेंसी भी कम पड़ जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि लॉस वैल्यू। तो नोट का या मनी का या मुद्रा का, करेंसी का वैल्यू जब घटता है, महंगाई बहुत तेज बढ़ती है। लोग बोलते भी है कि अरे यार 10 रुपए में हम 2 साल पहले लेते थे, आज 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। हम 10 साल पहले 10 रुपए का हम ये फला चीज खरीदते थे, आज 100 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी। फियर ऑफ इम्पॉवरिशमेंट इनगल्फ द होल जर्मनी। अब पूरे जर्मनी में ये फियर बढ़ गया कि पूरा जर्मनी में गरीबी आ जाएगी, भुखमरी होगी, कंगाली होगी, जर्मनी में तो खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी, पूरे के पूरे जर्मन पीपुल कंगाल हो जाएंगे। सो व्हाट वेर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वीमर रिपब्लिक? आई रिपीट इन शॉर्ट अगेन, वीक कोलिशन गवर्नमेंट, बिकॉज वेयर नो एनी पार्टी वॉज स्ट्रांग टू मेक गवर्नमेंट itself by the majority after the flight of the Kaiser, that was the king of Germany. So proportional representation, misuse of article 48, proportional representation था। what is proportional representation? If there are more than one party and they are contesting the election, suppose पार्टीज हैं कोई भी, हम ले लेते हैं A, B, C, और ये पार्टियां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, तो गवर्नमेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में गवर्नमेंट कैसे बनती है? और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट में जब भी हम रिप्रेजेंटेशन की गवर्नमेंट बनाएंगे तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सपोज कि देयर आर 100 सीट्स हमारी 100 है, सपोज कर लेते हैं। इफ ए गॉट 51 सीट्स, दैट इज मेजॉरिटी आउट ऑफ 100, सो ए ने गवर्नमेंट बनाया। बट व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? सपोज बी गॉट 35 सीट्स एंड सी गॉट so 6, 8, so minus 56, that is 4, and that is 1, 40. Okay, so 40. What will be the representation of this party in the government? What is the percentage of out of 100? 51. अब कितना सीटें जो है आधे से ज्यादा है। सपोज कि अगर 20 मेंबर्स की गवर्नमेंट बन रही है, मिनिस्टर और प्रेसिडेंट या चांसलर को लेकर के, तो इसमें से मोर देन हाफ इस पार्टी से मेंबर ले लिए जाएंगे, तो 10 प्लस यहां से ले लिए जाएंगे 35। सो अगर 100 का हम कॉमनली निकालते हैं तो 1/3, सो तो इसमें से 3 2 जा 6, सपोज करिए 7 या 7 प्लस यहां से ले लिए जाएंगे 14। तो अब 14 को हम लेते हैं, 3 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा, और इस पार्टी के मेंबर भी गवर्नमेंट में, इस पार्टी के मेंबर भी गवर्नमेंट में, इस पार्टी के भी मेंबर गवर्नमेंट में, तो इसको हम बोलेंगे कोलिशन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इन इंडिया दैट इज टोटल रिप्रेजेंटेशन बाय द मेजॉरिटी पार्टी। जब मेजॉरिटी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन मेजॉरिटी में कॉन्टेस्ट नहीं होती, सीटें नहीं विन कर पाती, तब दूसरे पार्टी से मिलकर के मेजॉरिटी बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मिस यूज ऑफ आर्टिकल 48, द आर्टिकल 48 ऑफ वीमर रिपब्लिक वॉज जस्ट लाइक द नेशनल इमरजेंसी। हमारे इंडिया में भी राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है वो जर्मनी के वीमर रिपब्लिक से ही लिया गया है, जो आर्टिकल 48 उसका था। यानी कि चांसलर, प्रेसिडेंट कभी भी चाहे तो आर्टिकल 48 का इम्प्लीमेंटेशन करके गवर्नमेंट जो है इसको डिसमिस करके और अपने कंट्रोल में पूरा का पूरा पावर ले सकता है, ये दिखा करके कि देश में संकट है। तो पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है, आर्म्ड या पावर जो आर्म्ड फोर्सेस का रिबेलियन होता है वो, और थर्ड है इकोनॉमिक, और जर्मनी में तो तीनों था। तो इसलिए जो आर्टिकल 48 था इसका भी बड़ा मिसयूज हुआ। सस्पेंडेड सिविल राइट्स